So here I am with the part 2 of the sentence formation of task 1, and my main purpose of the video was to make or was to teach you these 5 types of sentences, but unfortunately I could cover only one type, that was despite, otherwise it would have been a lengthy video. Let's dive deeper in the video. वीडियो शुरू करने से पहले इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब दैट. आई बी रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइस. सो जैसा कि हम सभी को पता है कि 4 टाइप के टास्क 1 होते हैं. फर्स्ट इज़ डायनामिक चार्ट्स, स्टैटिक चार्ट्स, मैप एंड योर प्रोसेस. डायनामिक चार्ट्स व्हाट दे आर, they can be your line, bar, pie or table, but the condition is that years must be given, or any form of year or any form of time must be given. There can be months on x-axis or something, minutes can be there, hours can be there, right? So that depends upon the examiner. And static charts are 3 types, whether they are bar, pie or table. In dynamic charts you are given time as I told you earlier, but in static chart either 1 year would be given or no year would be given. Next are your maps and next are your process. That's fine. In dynamic charts we use language of change, but in static we use language of comparison. Language of change means you tell increase or decrease something, and language of comparison means you compare the things, the highest with the low one. So let's start with despite. Hindi of despite is के बावजूद. So let's learn how to use despite in dynamic charts. Dynamic charts means when years will be given. What is the rule of despite? The rule is despite plus verb first form ing plus object, then there will be comma, then subject, verb and object. I have seen many students writing the sentence like they write despite first, after that they write subject, verb and object. It means they write despite the percentage of A increased 20% or by 20% till 2020, comma, the percentage of A increased in this time period. And that is the wrong, because with despite there must be verb first form and ing. Let's learn how. एक और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ. जो डिस्पाइट होगा उसके साथ अब आप वो फर्स्ट फॉर्म ing लगाने वाले हो तो वहाँ पर कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन होगी. सपोज पॉजिटिव है कि इंक्रीज़ हुआ है, तो कोमा के बाद देयर ऑलवेज विल बी नेगेटिव. दिस इज़ द वे वी मेक डिस्पाइट, कि ना बढ़ने के बावजूद यह गिरा, सेम रहने के बावजूद यह गिरा, सेम रहने के बावजूद यह बढ़ा, गिरने के बावजूद यह बढ़ा. It means there must be two opposite type of information when you are making the sentence with despite. I hope you understand now, right? तो हमें डिस्पाइट का यूज़ करने के लिए ऑपोजिट इंफॉर्मेशन चाहिए. या तो वो बढ़ेगी फिर गिरेगी, सेम रहेगी या गिरेगी. इसमें एक डेटा जो है वो बढ़ रहा है, इट मीन्स हम डिस्पाइट नहीं बना सकते, राइट? टेलीफोन वाला देखिए, अच्छा थोड़ा सा सेम रह के बढ़ा है, और ईमेल वाला भी थोड़ा सा सेम रह के, मार्च तक सेम रह के वो गिरा है. सो देखो, कांस्टेंट रहने के बावजूद यह गिरा. लाइक दिस वी कैन मेक सेंटेंस विथ डिस्पाइट हियर. सो रूल याद है आपको? डिस्पाइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो जैन से मार्च तक ऑलमोस्ट सेम रहने के बावजूद, तो डिस्पाइट रिमेनिंग सेम between January, you are going to write the full form. I'm writing short form just for saving my time.
despite remaining same between Jan and Feb at 600. Now I'll explain the subject, verb and object. Okay, तो subject है the number of inquiries made by email or letter. That is the subject ना, the number यानी किस चीज़ का number है. So number of inquiries. सेम रहने के बावजूद यह गिरा है, राइट. और आपको जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया था मैंने, सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, देन द ऑब्जेक्ट एंड देन द टाइम, यानी यह गिरा, इट डिक्रीज्ड, या फिर द नंबर ऑफ इंक्वायरीज मेड बाय ईमेल, वर्ब सेकंड फॉर्म, बिकॉज 2001 दैट हैज़ गॉन, राइट. तो यानी पास्ट टेंस यूज होगा. सो द नंबर ऑफ इंक्वायरीज मेड बाय ईमेल फेल moderately to 200 till June. So this is how you use or you make the sentence with despite. और basic sentence structures हमेशा आपके काम आने वाले हैं. बिना strong base के you cannot make the advanced sentence structures, ये ध्यान रखिएगा. सो अगर आपको बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो अबाउट मेकिंग द बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, सो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो, दैट विल श्योरली हेल्प यू. तो हमारा सेंटेंस क्या बना, डिस्पाइट रिमेनिंग सेम बिटवीन जनवरी एंड फेब्रवरी एट 600, कौन, द नंबर ऑफ इंक्वायरीज मेड बाय ईमेल फेल मॉडरेटली to 200 till June. I hope you understood. So let's see how we can use the same despite sentence structure in the bar graph. यहाँ पर आपको दे रखा है number of magazines sold in 5 different countries in 2005 and 2015. Fine. और मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप despite बनाना चाहते हो तो आपको opposite information चाहिए. One way information से you cannot make despite sentence structure. So इस ग्राफ में opposite information किसकी है, फ्रांस की गिर रही है, नो. बढ़ के गिरी है यूएस की, we can make despite. यूके के साथ नहीं बना सकते, इटली के साथ बना सकते हैं कि बढ़ने के बावजूद गिरी, राइट. So I am making the despite sentence structure with इटली, कि बढ़ने के बावजूद यह तेजी से गिरा या गिरेगा इन फ्यूचर, राइट. ईयर्स का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको कौन सा टेंस यूज करना है. सो आई होप यू रिमेंबर द रूल. डिस्पाइट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, देन कोमा, द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. वर्ब कौन सी यूज होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द टेंस. तो हमारे यहाँ 2025 में वो गिरेगा, है ना. सो आई विल यूज़ द सेंटेंस विथ विल और फ्यूचर टेंस आई एम गोना यूज़. तो 2005 से लेकर 2015 तक जो नंबर ऑफ मैगजीन्स है सोल्ड इन इटली इंक्रीज्ड. माई सेंटेंस विल बी डिस्पाइट इंक्रीजिंग, बिकॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इज देयर. So despite increasing from 15,000 to 20,000 between 2005 and 2015. That is the first half of the sentence. Next, I will use subject, verb and object. Verb depend करेगी कि ईयर कौन सा एक्सप्लेन होगा. तो ईयर है 2025, तो will यूज़ होगा उसमें. सो क्या बड़ा है, द सेल ऑफ मैगजीन्स इन इटली, दैट इज सब्जेक्ट, राइट. द सेल ऑफ मैगजीन्स इन इटली will fall abruptly in 2025 as per the predictions. As per the predictions is mandatory to write. Let's see its example in pie charts. हमें opposite information चाहिए.
सो ऑपोजिट यानी बढ़ने के बाद गिरी हो या गिरने के बाद बढ़ी हो, इसमें किस चीज़ की है? ट्रैवल बुक्स की। देखिए, अच्छा, बढ़ने के बाद वो गिरी है ना? 15, 18 एंड देन इट इज़ 10, बढ़ने के बाद गिरी है। सो यस, आई कैन मेक द सेंटेंस विथ डिस्पाइट। सो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जाने वाला है, डिस्पाइट इंक्रीजिंग विथ 3%। 3 से बढ़ा है ना वो, कैसे 15 से 18 तक बढ़ा, तो डिस्पाइट इंक्रीजिंग विथ 3% फ्रॉम 1972 टू 1992। Now subject is sale. So the sale of travel books decreased to 10% till 2012. Oh, I have written mistakenly 8%. I'm sorry for that. Now let's see how to use despite in static charts. Static charts means जब हमें कंपेयर करना है हाई का लो के साथ, तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। और 1 ईयर या फिर आपको नो ईयर दे रखा होगा वहाँ पे, तो वहाँ डिस्पाइट आईएनजी वाला नहीं बना सकते हो आप। तो उसका सॉल्यूशन है मेरे पास, सेंटेंस बनेगा डिस्पाइट द फैक्ट दैट। डिस्पाइट द फैक्ट दैट करके देन यू गोना राइट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कोमा सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। ये जो डिस्पाइट द फैक्ट के बाद वाली इंफॉर्मेशन होगी ना, यहाँ पॉजिटिव आएगी और कोमा के बाद नेगेटिव इंफॉर्मेशन आने वाली है। कंपैरिजन में पॉजिटिव क्या होती है? हाई, और नेगेटिव क्या होगी? लो। यानी डिस्पाइट द फैक्ट दैट उसकी परसेंटेज हाई थी, कोमा उसकी परसेंटेज लो होने वाली है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक द सेंटेंस। इस बार चार्ट को देख लीजिएगा, 1 ईयर नहीं है, कोई ईयर नहीं दे रखा, राइट? इसलिए मेरे को कंपेयर करना है। और डिस्पाइट द फैक्ट बनाने के लिए मेरे को एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन चाहिए, एक नेगेटिव। मैं यूके का उठा रही हूँ, किसी का भी उठ सकता था वैसे तो। यूके का उठाया, देखो हाईएस्ट है ना टी का इंपोर्ट यूके में, और कॉफ़ी का इंपोर्ट लोवेस्ट है। सो यस, वी आर गोना मेक डिस्पाइट सेंटेंस स्ट्रक्चर विद द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यूके। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर जाने वाला है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द इम्पोर्ट ऑफ टी बाय यूके वॉज हाईएस्ट एट 80,000 टन्स। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन वहाँ ईडी लिखा हुआ है ना, इम्पोर्टेड, तो नहीं कर सकते थे। सो डिस्पाइट द फैक्ट दैट द इम्पोर्ट ऑफ टी बाय यूके वॉज हाईएस्ट एट 80,000 टन्स। अब कोमा के बाद ऑपोजिट इंफॉर्मेशन, तो हाईएस्ट की ऑपोजिट इंफॉर्मेशन होगी इसका लोवेस्ट, राइट? तो मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इट इम्पोर्टेड ओनली 30,000 टन्स ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट इसका यूज़ देख लेते हैं टेबल में। जब आपको 1 साल होगा या फिर कोई साल नहीं दे रखा होगा, एक ही चीज़ का कंपैरिजन कर रही हूँ मैं इसमें। एम्प्लॉयमेंट रेट का हेल्थ में हाईएस्ट है और साइंस में लोवेस्ट है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या जाने वाला है? डिस्पाइट द फैक्ट दैट एम्प्लॉयमेंट रेट इन हेल्थ वॉज मैक्सिमम एट 93%, opposite information, it was only 62% in science. This is how you make the sentence with despite the fact that. Let's see how to use despite in maps. मैप में मैं ये इस तरीके से यूज़ किया करती हूँ कि कुछ चीज़ें सेम रखने के बावजूद इस चीज़ को इस चीज़ के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, या इस चीज़ की जगह वो चीज़ बना दी है। तो इस मैप में क्या चीज़ें सेम रखी हैं उन्होंने? फार्म हाउस और रोड्स। तो फार्म हाउस और रोड्स को सेम रखने के बावजूद
मैं लिख दूँगी ये ट्रैक्टर्स जहाँ है वो रिप्लेस हो गया था पार्किंग से। अगर आप डिस्पाइट द फैक्ट लिखोगे तो मेरे को पूरा सेंटेंस चाहिए वहाँ कंप्लीट। डिस्पाइट द फैक्ट दैट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप डिस्पाइट के साथ आईएनजी वाला सेंटेंस बनाते हो तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, डिस्पाइट वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। I guess you understood the difference between these two forms of despite sentence structure. So आपका sentence structure रहेगा despite keeping roads and farmhouse unchanged, कि उनको unchanged रखने के बावजूद क्या हुआ है, a parking area was constructed in place of storage for farm machinery. So this is how you make the sentence. अब इसका पॉसिबल अनदर सेंटेंस स्ट्रक्चर बता रही हूँ आपको। डिस्पाइट द फैक्ट के साथ डिस्पाइट द फैक्ट लिखने के बाद आप एक पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखने वाले हो, राइट? सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट फार्म हाउस एंड रोड्स डिड नॉट विटनेस एनी चेंज, storage for farm machinery was replaced by a parking area. ओके, आपको ये देखना ही पड़ेगा कि ये दो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस क्या है। एक डिस्पाइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के लगता है और एक लगता है डिस्पाइट द फैक्ट करके एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखते हो आप। एक और एग्जांपल बता रही हूँ आपको। देखो इसमें टेनिस कोर्ट्स दे रखे हैं, राइट? टेनिस कोर्ट्स क्या है, 2 और आगे वो 4 कर दिए गए हैं, यानी टेनिस कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो डबल हो गई है ना। तो मेरा सेंटेंस ये रहेगा कि उसकी लोकेशन सेम रखने के बावजूद उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा दी गई थी। तो सेंटेंस विल गो, डिस्पाइट कीपिंग द लोकेशन ऑफ टेनिस कोर्ट्स अनचेंज्ड, their strength has been doubled. सो ये आपने सीखा डिस्पाइट सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ इन डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। अब कुछ बच्चे रॉन्ग इंफॉर्मेशन लिखते हैं, कैसे? डिस्पाइट द परसेंटेज ऑफ ट्रैवलर्स इंक्रीज टू 20 इन फर्स्ट 3 years, कि 20% बढ़ गई है, कोमा डाल के इट डिक्रीज्ड ग्रेजुअली इन लास्ट ईयर्स, एंड दैट इज रॉन्ग सेंटेंस स्ट्रक्चर। डिस्पाइट के बाद कभी भी कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आता, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड एंड ऑब्जेक्ट नहीं। अगर आपने ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाया है कि डिस्पाइट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, देन दैट इज रॉन्ग सेंटेंस स्ट्रक्चर, माइंड इट। डिस्पाइट के साथ हमेशा आईएनजी वाला सेंटेंस आता है, समझ रहे हो आप? तो रूल होगा इसका, डिस्पाइट प्लस वर्ब फर्स्ट, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, देन कोमा द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। That is the right sentence structure of despite. Despite verb first ing object and then the another information. इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो ना आफ्टर वाला और बिफोर के जैसा होता है। जैसे आफ्टर के साथ, जैसे आफ्टर इंक्रीजिंग द परसेंटेज डिक्रीज्ड, या फिर बिफोर डिक्रीजिंग द परसेंटेज इंक्रीज्ड, ऐसे ही डिस्पाइट इंक्रीजिंग द परसेंटेज डिक्रीज्ड। सो ये सिमिलैरिटी है इन तीनों सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में। डिस्पाइट के साथ आप आईएनजी लगाते हैं, आफ्टर के साथ आईएनजी, बिफोर के साथ भी आईएनजी। डिस्पाइट वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, देन कोमा सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। डिस्पाइट वाले के साथ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन और नेक्स्ट कोमा के साथ नेगेटिव इंफॉर्मेशन। और इसका सेकंड टाइप है डिस्पाइट द फैक्ट दैट करके आप कंप्लीट सेंटेंस लिख सकते हो।
सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, सो ऐसे बनेगा सेंटेंस, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि द परसेंट, यहाँ से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर आपको लिखना है तो आप डिस्पाइट द फैक्ट लिखोगे। कंपैरेटिव में हम ये लिखते हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट द परसेंटेज ऑफ ए वॉज हाईएस्ट, कॉमा डाल के उसकी परसेंटेज लोवेस्ट थी। So these were the two types of despite sentence structure, and that's what I have taught you in this video. And thank you for watching and thank you for supporting. Have a nice time.